آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، جہاں نہ کوئی عظیم شان محل تھا، نہ سنگ مرمر کے ستون، نہ سونے سے سجے تخت و تاج، اور نہ ہی دنیا کی سب سے بڑی آرمی، بس صرف چند بوسیدہ خیمے اور کچھ گھوڑے، چند جنگجو خاندان۔ مگر ان لوگوں کا ایسا جذبہ ایمانی تھا جسے دنیا کی کوئی سپر پاور شکست نہ دے سکی۔ کیا آپ بلیو کریں گے کہ انہی چند معمولی خانہ بدوش خاندانوں کی نسلوں نے آگے چل کر ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ قائم کی جس نے تقریباً 650 سال تک دنیا کے 3 کانٹیننٹس پر حکومت کی، ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے خوف سے یورپ کے بڑے بڑے سورما کانپ اٹھتے تھے، جس کے پرچم ایشیا، یورپ اور افریقہ کی بارڈرز پر لہراتے تھے۔ اور اسی قوم میں سلطان محمد فاتح جیسے دانشمند، علم، فہم و فراست والے 21 سالہ فاتح بھی پیدا ہوئے، جس نے قسطنطنیہ فتح کر کے 700 سال پرانی پریڈکشنز کو حقیقت بنا دیا۔ سلطان سلیمان قانونی جیسے حکمران، قابل فخر سلطان، جن کے دور کو آٹمن امپائر کا سنہری دور حکومت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور عثمانیوں کی یہ داستان نہ عثمان غازی سے شروع ہوتی ہے اور نہ ہی ارطغرل غازی سے، بلکہ اس سے بھی کئی سنچریز پہلے سینٹرل ایشیا کے ان وسیع میدانوں سے، جہاں شدید سرد موسم اور بلند برفیلے پہاڑ بھی اس قوم کے جذبہ آزادی اسلام کو کمزور نہ کر سکے۔ جہاں موسم گرما میں دور دور تک پھیلے سرسبز و شاداب میدانوں میں ہزاروں گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، یہیں ایک ایسی قوم بھی آباد تھی جو دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار، وفاداری، بہادری اور جدوجہد آزادی سے پہچانی جاتی تھی۔ یہ قوم تھی اوغوز ترک قبائل کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اوغوز ترک تھے کون؟ ان کی حقیقت کیا تھی؟ انہوں نے کن کن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا کیا؟ ان قبائل میں کون کون سے عظیم ہیرو پیدا ہوئے؟ آخر یہ معروف شخصیت اوغوز خان تھے کون؟ الب ارسلان، جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ اناطولیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے ترکوں کے لیے کھل گئے۔ ملک شاہ اول، جس نے ایک عظیم سلجوق سلطنت کو مقام عروج تک پہنچایا۔ کائی قبیلہ دوسرے قبائل سے کیوں مختلف تھا؟ سلیمان شاہ در حقیقت کون تھے؟ ارطغرل غازی کس طرح ایک بکھرے ہوئے قبیلے کے لیے امید کی کرن بنے؟ اور پھر کیسے عثمان غازی جیسے عظیم سردار نے ایک چھوٹے سے قبیلے کی چھوٹی ریاست سے ایک عظیم سلطنت کی داغ بیل ڈالی؟ اور پھر اسی قوم سے سلطان محمد فاتح اور سلطان سلیمان قانونی جیسے عظیم سلطانوں نے دنیا میں کیسے نام پیدا کیا؟ یہ محض ایک تاریخ ہی نہیں، یہ صبر، قربانی، ہجرت، ایمان، اتحاد، ناقابل یقین اور عزم مصمم کی ایک عظیم داستان ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو یکسر طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس ڈاکومنٹری سیریز میں ہم ایک ایک کردار کو تاریخی شواہد اور مستند روایات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے، مگر آج ہم واپس چلتے ہیں اسی مقام پر جہاں اس عظیم داستان کا پہلا دور شروع ہوا۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں 1000 سال پہلے کے اوغوز ترکوں کی زمین کی طرف۔ اگر تاریخ کے اوراق کی آبزرویشن کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں کی قدیم ترین اور طاقتور ترین شاخوں میں سے ایک شاخ اوغوز ترک تھے۔ یہ لوگ آج کے قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان اور منگولیا کے مغربی علاقوں پر پھیلے ہوئے وسیع عریض میدانوں میں آباد ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی زمین تھی جہاں زندگی گزارنا بہت مشکل کام تھا۔ سرد موسم میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچے گر جاتا تھا۔ برفانی طوفان کئی دن تک جاری رہتے تھے اور گرمیوں میں میلوں دور تک پھیلے ہوئے میدانوں میں پانی اور چراگاہوں کی تلاش ہی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن جاتا تھا۔ مگر انہی سخت ترین حالات میں ایک ایسی قوم دنیا میں ابھری جو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اوغوز ترک مستقل شہروں میں نہیں رہتے تھے، ان کے گھر پتھروں یا اینٹوں سے نہیں بنتے تھے، ان کی دنیا ان کے یارٹ یعنی گول خیموں کے گرد گھومتی تھی،
जिन्हें वो चंद घंटों में समेटकर नई मंजिल की जानिब रवाना हो जाते थे। इनका नजरिया ये था कि जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं बल्कि खुदाए वाहदहू की मलकियत और अता है। जहाँ सरसब्ज चरागाह मिलती वही इनका ठिकाना बन जाता। मगर इनकी असल ताकत इनके खेमे नहीं थे, इनकी असल ताकत इनकी तरबियत थी। कहा जाता है कि एक तुर्क बच्चा जितना वक्त जमीन पर गुजारता था इससे ज्यादा वक्त घोड़े की पीठ पर गुजारता था। तीरंदाजी, तलवारबाजी, नेजा चलाना और घुड़सवारी ये सिर्फ जंगी महारतें नहीं थी बल्कि इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन ओगोज तुर्कों की अजमत सिर्फ उनकी जंगी ताकत से नहीं थी। इनके यहाँ वफादारी, वादे की पाबंदी, मेहमान नवाजी और कबीले के लिए जान कुर्बान करना सबसे बड़ा एजाज समझा जाता था। ओगोज कबीले के बुजुर्ग नौजवानों को सिखाते थे कि बहादुर वो नहीं जो सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे बल्कि बहादुर वो है जो अपने वादे की हिफाजत करे। इसी तरबियत ने बाद में ऐसे अजीम सिपा सलार पैदा किए जिनके नाम आज भी तारीख में इज्जत से लिए जाते हैं। रिवायात के मुताबिक सबसे पहले ओगोज खान का नाम सामने आता है। वो शख्सियत जिसे ओगोज कबाइल का जद्दे अमजद और इत्तेहाद की अलामत समझा जाता था। अगरचे इनकी जिंदगी के बारे में तारीखी और रिवायती रिवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन तुर्कों में ओगोज खान को बहादुरी, क़यादत और इत्तेहाद की अलामत माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद किया और एक परचम तले इकट्ठा किया और फिर इसी यूनिटी की बेस पर तुर्क दुनिया में एक मजबूत ताकत बनकर दुनिया पर छा गए। लेकिन ओगोज तुर्कों की असल आजमाइश अभी शुरू नहीं हुई थी। उफुक पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो पूरे सेंट्रल एशिया को हिलाकर रख देने वाला था। खुश्क साली, कबायली जंगें और फिर ऐसे हमला आवर जिन्होंने लाखों लोगों को अपने घरों से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। यही वो वजूहात थी जहां से ओगोज तुर्कों की असल जिद्दोजहद आजादी शुरू हुई और इसी जिद्दोजहद आजादी से आगे चलकर वो खानदान उभरा जिसने दुनिया को सल्जूक सल्तनत दी और फिर उस्मानी सल्तनत। अब सवाल ये है कि वो सफर कैसे शुरू हुआ। वक्त का पहिया चलता रहा। ओगोज तुर्कों के इत्तेहादी कबाइल सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होते गए। हर कबीले का अपना अलग सरदार था, अपनी रिवायात थी। लेकिन जब कोई दुश्मन बाहर से हमला आवर होता तो तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर एक जगह जमा हो जाते। ओगोज कबाइल कुनक कबीला, काई कबीला, बायंदर कबीला, अफशार, ब्याद और सालोर और कई दूसरे कबाइल पर मुश्तमिल था। तारीख का धारा बदलने वाला कुनक कबीला, जिस कबीले से सुल्जूक खानदान जैसा अजीम खानदान मंजर आम पर आया। सुल्जूक सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं था बल्कि एक ऐसे खानदान का आगाज था जिसने इख्तलाफात की वजह से मुंतशिर ओगोज कबाइल को एक मजबूत सियासी ताकत में बदल दिया। चंद ही दहाइयों में सल्जूकी तुर्क खुरासान, ईरान और इराक की हदूद तक पहुंच गए। इनकी बढ़ती हुई ताकत से इस्लामी दुनिया को एक नई उम्मीद की किरण मिली। सल्जूकी खानदान से एक ऐसा बहादुर सिपा सलार पैदा हुआ जिसका नाम आज भी अस्करी तारीख के अजीम तरीन जर्नैलों में शुमार किया जाता है। सुल्तान अल्प अरसलान सन 1071 ईस्वी बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी। दूसरी तरफ अल्प अरसलान की फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन इसके सिपाहियों के दिल ईमान, नज़्म ज़ब्त और अज़्म मुसम्मम से भरे हुए थे। जंगे मिलाज़गर्द शुरू हुई और चंद ही लम्हों में तारीख बदल गई। बाज़ंतीनी शहंशाह कैदी बना लिया गया और पहली बार अनातोलिया के दरवाजे तुर्कों के लिए पूरी तरह खुल गए। मुअर्रिखीन इसी फतह को बाद में उस्मानी सल्तनत के क़याम की पहली बड़ी बुनियादों में शुमार करते हैं। अल्प अरसलान के बाद इनके जानशीन सुल्तान मलक शाह अव्वल, जिसने सल्जूक सल्तनत को उस उरूज तक पहुंचाया कि इनके दौर में इल्म, तिजारत, तामीरात और इंसाफ ने गैर मामूली तरक्की की। ये वो जमाना था जब सल्जूक सल्तनत इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन रियासतों में शुमार होती थी। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अजीम सल्तनतें भी आजमाइशों से गुजरती हैं। दाखिली इख्तलाफात, इक़्तिदार की कशमकश और मशरक से उठने वाले नए खतरात ने सल्जूक सल्तनत को कमजोर करना शुरू कर दिया। इन्हीं हालात में ओगोज तुर्कों का एक और कबीला जिसका नाम था काई कबीला
अपनी बका की जंग लड़ रहा था। उस वक्त शायद किसी ने ये तस्वुर भी नहीं किया होगा कि ये छोटा सा कबीला आने वाली सदियों में दुनिया की ताकतवर तरीन इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखेगा। और फिर इसी कबीले से ऐसे नामवर बहादुरों के नाम सामने आए जिन्हें दुनिया आज भी इज्जत से याद करती है, जिनमें सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी जैसे बहादुर शामिल हैं। ये दास्तान अभी शुरू हुई है। सल्जूक सल्तनत कमजोर होने लगी। मशरिक से मंगोलों का तूफान उठ रहा था जिसने पूरे एशिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोलों ने शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया, बस्तियों को जला दिया और हजारों खानदानों को बेघर कर दिया। इन्हीं बेघर होने वालों में एक छोटा कबीला काई कबीला भी था। ये लोग अपने खेमे, अपने घोड़े, अपने बच्चे और अपनी उम्मीदें साथ लिए नई सरजमीन की तलाश में निकल खड़े हुए। दुश्वार गुजार रास्ते, बर्फ से ढके पहाड़, आबू गया मैदान, भूख, प्यास और हर लम्हा दुश्मन का खतरा। लेकिन शायद इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये सफर सिर्फ एक नई जगह की तलाश नहीं बल्कि तारीख के एक नए बाब का आगाज है। सरदार सुलेमान शाह का नाम इसी कबीले के सरदार और रहनुमा के तौर पर मिलता है। इनके बाद कबीले की सरदारी एक ऐसे बहादुर के हाथ में आई जिसका नाम सदियों बाद भी बहादुरी की अलामत बन गया, और वो बहादुर नौजवान था अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी ने काई कबीले के लिए अनातोलिया में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने कमजोरों का साथ दिया, अपने कबीले को मुत्तहिद रखा और ऐसे फैसले किए जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता हमवार कर दिया। फिर वक्त ने एक और अजीम रहनुमा को जन्म दिया जो अर्तुगरुल गाजी के जानशीन सरदार उस्मान गाजी थे। सन 1299 में उस्मान गाजी ने एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यही रियासत एक दिन दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार होगी। सदियां गुजर गईं और फिर इसी खानदान से एक 21 साला नौजवान सुल्तान उठा जिसका नाम था सुल्तान महमद फातेह। सन 1453 ईस्वी कुस्तुनतुनिया की वो दीवारें जिन्हें सदियों तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, आखिरकार फतह कर ली गई। इसके बाद उस्मानी सल्तनत मुसलसल ताकतवर होती चली गई, यहाँ तक कि सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में इसकी सरहदें यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक जा फैली। लेकिन अगर हम इस पूरी दास्तान को एक जुमले में समेटें तो हकीकत ये है, ये अजीम सल्तनत न सोने के ताज से शुरू हुई, न संगे मरमर के महल्लात से शुरू हुई, बल्कि चंद खाना बदोश खैमों, आजादी से मोहब्बत करने वाले लोगों और ऐसे बहादुरों से शुरू हुई जिन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। ओगोस तुर्कों की यही मीरास आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। और ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि इस अजीम दास्तान में अभी बहुत से मोड़ आने बाकी हैं। अगली किस्त में हम ओगोस खान की शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। क्या ओगोस खान वाकई एक तारीखी शख्सियत थे या एक अजीम हीरो? ओगोस कबाइल के 24 कबीले कैसे वजूद में आए और काई कबीले को इनमें इतनी अहमियत क्यों हासिल हुई, ये सब जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको तारीख से मोहब्बत है तो इस सफर में हमारे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि अभी असल दास्तान बाकी है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।